Assalamu alaikum dear students, welcome to the online classes. We are having today our first lecture of chemistry. We will start from chapter number 1, periodic classification of elements and periodicity. First of all, what is the periodic classification of elements? Periodic classification of elements क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे. द टेबल विच प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड chemical properties of elements and their compounds. You can learn this definition from your book and also you can see it from the slides. I'm showing it to you. Learn it by heart. And then we will come to the historical background of the periodic table or the periodic classification of elements. Periodic classification of elements start की गई बहुत शुरू में अरब साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी. सबसे पहले अल राजी का नाम आता है इसमें, जिसने फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन दी जो कि बेस करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें मालूम नहीं, लेकिन मज़ीद जो काम हुए उनके बारे में डिटेल्स मालूम है. सेकेंड वॉज द डोब्रेनियर. ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट. ही गेव लॉ ऑफ ट्राइएड्स टू क्लासिफाई द नोन एलिमेंट्स. What is the law of triads? You can see another slide which is showing the detail of law of triads. Law of triads actually shows that there are group of 3 elements. He made many groups of 3 elements in which the atomic mass of the central element can be calculated from the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements. Just like lithium, sodium and potassium. Lithium has atomic mass 7 while potassium has 39. You can calculate the atomic mass of sodium by taking the arithmetic mean of lithium and potassium. 7 plus 39 divided by 2, it will come out to be 23, which is the atomic mass of sodium. Next name is Newland. Newland gave law of octaves. He was an English scientist. He also classified the elements of 62 known elements, but in a different manner. He made groups and periods. In each period there were 7 elements, and every 8th element resembles in the physical and chemical properties with the first one. Okay. हर 8वां एलिमेंट जो था वो फर्स्ट एलिमेंट की क्वालिटीज को रिजेंबल करता था, उनसे रिजेंबल करता था. यानी कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, ऑक्टा मीन्स 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती थी फर्स्ट वन से. नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज मेंडलीव. मेंडलीव का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत इसने की. ही वॉज अ रशियन केमिस्ट. He classified the elements or tabulated the elements on the basis of their atomic masses. ठीक है. He made a periodic table in which there were 12 periods and 8 groups. Okay, but उस टाइम तक इतने ज़्यादा elements डिस्कवर नहीं हो चुके थे जितने अब हैं. तो कुछ अरसे तक तो ये ठीक रहा, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. और उन फ्लॉज को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत थी, और वो दिया था मोज़ले ने. मोज़ले वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ही classified the elements on the basis of increasing atomic number. Important feature of this periodic table is that there are 18 groups and 7 periods, and up till now we are using the Moseley's periodic table, which is also called the modern periodic table. In the next lecture we will discuss the comparison of Mendeleev and Moseley's classification, and we will also discuss the drawbacks of Mendeleev's periodic table and important features of Moseley's periodic table or modern periodic table. Okay, thank you so much.
आज का लेक्चर मैं आपको वाइंड अप करती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि ये क्या होता है, और फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो नाम आपने पढ़े और वो जिन कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके मुतालिक आपने याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नहीं लिखी वो ये है कि अलराजी, डोब्रेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोज़ले, इनमें से कुछ के ईयर्स लिखे हुए हैं कि किन सालों में इन्होंने कोई काम जो प्रेजेंट किया, वो भी आप इनके साथ याद कर लीजिएगा अपनी बुक से। या आपकी बुक का पेज नंबर 1 और 2 है, 1 कंप्लीट है और 2 का कुछ पार्ट है। अब मैं आपको आपकी असाइनमेंट देने जा रही हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको रीड करना है और इसको लर्न करना है, अच्छी तरह से याद करना है, और उसके बाद आपने कमेंट्स में मुझे एग्जाम्पल्स देनी है, कुछ एग्जाम्पल्स देनी है जिसमें से हमें ये पता चले कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्यों गलत कंसिडर किया गया या उसमें क्यों फ्लॉज सामने आए। ठीक है, उसकी क्या रीजंस थी। तो आप पढ़कर उसमें से चंद एक बातें, चाहे 2-3 पॉइंट्स ही निकालें, वो निकाल कर आप मुझे कमेंट्स में सेंड करें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।